Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 8th to 14th of April. Let's see how this week looks like for you guys. What is universe, angels trying to guide you? What are they trying to tell you at this point? So we start with Aries. As usual, 2 tarot cards and 1 angel message. Let's begin. Aries, it's time to seek help. Aries, I feel you just need someone to hear you out. There's so much emotional outburst that's going inside you. You need to vent out, you need to ease out. It just feels somewhere you just need someone to hear. It just feels that. So someone is really offering you that ear. कोई आपकी बातें सुनना चाहता है, कोई आपके साथ बैठ के दिल का हाल देना चाहता है, but you're just so stuck and you're just like, no, it's something very personal and you're not ready to put that out. But I feel it's important for you to understand this energy. Ease out, vent out. It's going to help you grow emotionally. At the same time, this is such a important and a strong positive energy जो बोल रहा है कि यार जैसे आप वेंट आउट करोगे ऐसे ही आप ग्रो करोगे. You will be able to focus so much on your own self. This is also a card about new beginnings. This is also something that's there तुम्हारे सामने, पर तुम इसे नर्चर करना अभी स्टार्ट करोगे. सो समवेयर दैट एनर्जी इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बट बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल बैगेज यू आर अनएबल टू फोकस, यू आर अनएबल टू वॉक दैट पाथ और दैट जर्नी फॉर दैट मैटर. सो समवेयर थोड़ा सा अपने लिए ही सही किसी से बात करो. Simultaneously start focusing on a lot more things that matter. Now this could be personal or professional, right? But you need to really focus and work. Raising your standards is what angels want you to do. Angels want you to focus. I feel somewhere angels are telling you don't give up. तुम ना बहुत ज्यादा वर्थ हो, बहुत ज्यादा तुम्हारी वैल्यू है. तुम लोगों के आगे इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करो that you put yourself down. So it's about time you raise your standards and stand for your worth, right? That is what angels are telling you. So Aries, it's going to be a mixed and a complicated week, but I'm sure you'll find your path, you'll find your way out of this, right? So that is what we have for you. I hope you have a great week. Let's move to Taurus. Taurus, we are pulling out 2 tarot cards for you, 1 angel message. Let's see how this week looks like for you guys. 2 tarot cards and 1 angel message. And Taurus, it feels somewhere कोई ना आपके सर पे चढ़ के बैठेगा. There's a lot of burden, there's a lot of pressure, there's a lot of dominance coming your way. But I feel somewhere it's time you understand and come out of that. It just feels इतना ज़्यादा pressure में हो, इतना ज़्यादा burden हो कि तुम्हारा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है. You're not thinking what you really are meant for, what you really want to do, how you want to work, how you want to grow. So there's so much that you want to do, but ये pressure ने ना तुम्हारी आँखें और दिमाग जैसे एक तरीके से बंद कर दिया है. I want you to come out of it. Yes, you are very good at multitasking. So even if there are too many things on your plate this particular week, I feel you're excelling. You're doing it right. So why are you worrying? Why are you bothering so much? You really need to focus. You really need to manage your time well. बस ये है कि थोड़ा manage अपना time अच्छे से करो. इतना ज़्यादा worry मत करो कि यार will I be able to? Don't self doubt. You know what I'm saying? So this is what your energies are saying. At the same time, don't let somebody eat you up in literal sense. After coming out of this path, angels are telling you it's time for your happily ever after. You need to focus on yourself. You need to work on your growth, your progress, all of it. जैसे आप वो करोगे यार, there is good things, there are good times ahead of you. You need to work for that, right? So this is what Taurus we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, everything that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, मैं आपके लिए 2 tarot cards और एक angel message pull out कर रही हूँ. Gemini, let's look at your energies. Let's understand what cards are trying to tell you, what God is trying to tell you. I feel Gemini, there's a lot of frustration inside you. You need to ease out. You need to calm down. मतलब ये हफ्ते जितना हो सके ना Gemini उतना meditation करो. अगर meditation नहीं होता है तो just start chanting certain things out so that you feel lighter, so that you feel better. It just feels there is so much anger, there's so much aggression inside you. ये जब तक calm down नहीं होगा आप कैसे ग्रो करोगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे? It will feel heavy, it will feel burden. Yes, you need to take a little breather
इन अ वे जहाँ पे ना आप ज्यादा स्ट्रेस मत करो. इवन इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड और फिगर समथिंग आउट दिस पर्टिकुलर वीक, इट्स फाइन. जस्ट ड्रैग. मतलब ये समय आपका ऐसा है कि कुछ नहीं करना है, बस समय को किल करना है, समय को ड्रैग करना है, अपना गुस्सा काबू रखना है, अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करके जितना होता है उतना स्पिरिचुअलिटी में जाना है. मेडिटेशन करो, पाठ पूजा करो, whatever feels right, journaling, affirmations, whatever feels right to you, focus on that. Don't make any important decisions this particular week. Don't make any big choices or decisions. ये हफ्ते नहीं करना है. ये हफ्ते जितना हो सकता है उतना ड्रैग करो, उतना पीछे कर दो. अब जो एंजल मैसेज है वो भी यही है, सेल्फ रिलायंस. यू नीड टू टेक केयर एंड प्रोटेक्ट योर ओन वाइब्रेशंस. इतनी ज्यादा आपकी एनर्जीज वीक हो रखी हुई है ना इस वक्त की, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. सो यू नीड टू काइंड ऑफ वर्क अ लिटिल मोर ऑन योर सेल्फ सो दैट यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट बेटर विथ एवरीथिंग दैट यू डू. Let's move to Cancer. Cancer, I'm pulling out 2 cards for you and 1 angel message. Let's see. 2 tarot cards and 1 angel message. Okay. Cancer, the card that we have for you says there are certain power and authority that you have. मतलब तुम्हारे पास डेफिनेटली कोई पावर और अथॉरिटी है, बट तुम उसका राइट यूज नहीं कर रहे हो. तुम दूसरों को चार्ज दे रहे हो कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये पावर रख लो, तुम ये. डोंट डू दिस फ्रॉम योर ओन हैंड. आई फील यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू आर वर्थ. यू आर जस्ट गिविंग अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स knowing the fact that it could backfire you. तुम्हें पता है कि तुम्हें ये backfire कर सकती है चीजें. यही जो तुम पावर किसी और को दे रहे हो, यही पावर तुम्हें बहुत हावी पड़ सकता है. So somewhere this is just a time to understand and hold on to your power. Don't let it go for a toss at this point. It's also time about new ideas, new thoughts. कहीं ना कहीं कोई नई चीज आ रही है, so wait on to that. Don't rush. घाई घाई में कोई स्टेप नहीं लेना है, घाई घाई में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. Yes, it just feels you're stuck with a lot of past energies. You're just wondering कि यार कैसे होगा, क्या होगा. This card only tells us there is a constant looking back. आप हर चीज को इतना look back करो, यार कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. Also a lot of self doubts are coming your way. But I feel one advice that you want to take it from this video is just live in the present. ये हफ्ते अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, बस अपने प्रेजेंट सिचुएशन में एकदम अच्छी तरीके से एनग्रॉस्ड रहना है, एकदम अच्छी तरीके से फोकस करना है. जो हो रहा है उस वक्त उसे एक्नॉलेज करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो यूनिवर्स को. दैट्स ऑल यू नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर वीक. हैविंग सेड दैट, लेट गो. एंजल्स आर ओनली सेइंग लेट गो. जो हो गया, बार बार उसे याद करके, बार बार उसी के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है. यू आर जस्ट हर्टिंग योर सेल्फ ऑल द मोर. So it's time you understand this. Just let go of that's not serving you well at this point. Right? So that is literally what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, whatever you're looking forward to. Have a great week ahead. Let's move to Leo. Leo, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this particular week looks like. Leo, ये हफ्ता ना थोड़ा सा ब्ला जा रहा है, थोड़ा सा ब्लैंक जा रहा है. आपको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है. बहुत ही ज्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हो गए हो. बट यू नो व्हाट, आई फील इट्स फाइन लियो. यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू रश अबाउट इट. इट्स जस्ट टेलिंग यू, बस अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो अवॉइड करो, तो उसे धकेलो. बट किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये चॉइस या डिसीजन नहीं लेनी है. जितना आप किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी की चॉइस या डिसीजन में आके ये स्टेप ले रहे हो, ये कदम ले रहे हो, ये आपको उतना ही ज्यादा बैकफायर कर रहा है. So I feel it's important for you to understand this vibration, to give it time. Just understand कि टाइम देना है, बट किसी के बहकावे में आके या किसी के बोलने पर कुछ नहीं करना है ये हफ्ते. However, आपके रिलेशनशिप में भी थोड़ी अड़चने आ रही है, रिलेशनशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, बट आई फील ये टेम्पररी है. इसमें कुछ बहुत ज्यादा वरी करने वाली सिचुएशन नहीं है, वरी करने वाली बात नहीं है. आई फील यू आर वर्किंग, यू आर गेटिंग बेटर एंड यू विल इवेंचुअली गेट व्हाट यू वांट. सो समवेयर होल्ड ऑन टू दिस रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप को पकड़े रहना है, ये रिलेशनशिप को जाने नहीं देना है. आई फील ये रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सही रिलेशन है, बट थोड़ा सा ईजी होना है. मतलब गुस्सा जो है ना वो आपका रिलेशन खराब कर सकता है. सो गुस्से को बस काबू में रखना है, और जितना हो सके ये हफ्ता बस घसीटो, ड्रैग करो, उतना ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में फॉलो करो. बिकॉज यूनिवर्स इज टेलिंग यू फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर एनर्जीज, फॉलो योर वाइब्रेशंस. कहीं ना कहीं जितना ज्यादा तुम चेस करोगे उतना ही ज्यादा वो तुम्हारे नजदीक आती जाएगी. सो जस्ट focus a little more onto your professional life. Again, do not make any big choices or decisions this particular week.
right? So I really hope it helps, brings you light, positivity, everything that you are looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. वर्गो मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर वीक लुक्स लाइक फॉर यू गाइस. Virgo, the card that we have for you is telling you that somewhere जो इमोशनल पेन, जो इमोशनल ट्रॉमा, जो इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे थे ना वर्गो, वो जा रहा है. You are definitely feeling a lot better. You're definitely feeling a lot lighter at this point. This week is all about healings for you. जितना हो सके उतना अपने आप को हील करने की कोशिश करें, जितना हो सके अपने आप को ये सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जिससे आप बाहर निकाल रहे हो अपने आप को, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके लिए बहुत फेवर कर रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आपका. सो आई फील यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट साइमल्टेनियसली कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू एनर्जी, कोई न्यू वाइब्रेशन भी आ रही है आपके लाइफ में जो आपका पैसा ग्रो कर रही है. आई सी दिस एज अ गुड न्यूज इन टर्म्स ऑफ मनी. तो पैसे को लेकर कुछ बरकत हो सकती है, पैसे को लेकर कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है. अगर मार्केट में कोई अटके हुए पैसे हैं वो भी निकल सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी आ सकती है. अगर आप घर लेने का भी प्लान कर रहे हो या कोई बड़ा असेट लेने का प्लान कर रहे हो, दिस इज अ गुड वीक. मेक श्योर you're putting your money in the right thing. It's very important. Again, जो भी चीज में आप अटके हुए हो, जहां पे भी आप ब्लॉकेज फील कर रहे हो, look inside yourself. Angels are telling you answers are with you, answers are within you. You just need to give that time and dedication to your own self. The moment you're giving that, I feel you're flying with beautiful colors, right? So that is literally what we have. I really hope it helps, brings you light, positivity, and everything that you were looking for. Libra, we are pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this particular week looks like for you guys. Libra, बहुत ज़्यादा नज़र है लोगों की आपके ऊपर. लेट मी जस्ट से इट आउट लाउड. जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जितना आप ग्रो करने की कोशिश करते हो, इतनी ज़्यादा नज़र आपको अफेक्ट कर जाती है कि आपका काम ही नहीं बन पाता है. वन इम्पॉर्टेंट एडवाइस फॉर दिस वीक लिब्रा इज दैट कि लोगों को प्लीज मत बताइए कि आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. आई फील आप इतने ज्यादा लाउड हो गए हो कि आप क्या खा रहे हो आप वो भी बता रहे हो लोगों को, एंड दैट इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, अ लॉट ऑफ नजर टू यू. तो संभलना है कि अपने आप की बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, अपने आप की ग्रो करना है. क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है. मुझे ऐसे लग रहा है यार आप पैसे कमा सकते हो, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, बट जैसे आप लाउड हो जाते हो, आप लोगों को बता देते हो, आप दुगना ही कैसे कहते हैं लॉस फेस करते हो. सो समवेयर स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू योर मनी, be very careful, be very cautious, do not be very loud about it, especially this week. उसके बाद ठीक है, जो आप कर रहे हो सही है. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा किक अप योर हील्स यार, आप हल्के में ले रहे हो. क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो. आपका आउटकम, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में, बट आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर रहे हो. आप कैसे कह रहे हो, हाँ जैसे चल रहा है चलाने दो. ऐसा भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, पर व्हेन यू रियली डिजर्व, व्हेन यू कैन रियली डू अ लॉट मोर, देन व्हाई नॉट. सो एंजल्स वांट यू टू किक योर हील्स अप. So yeah, that is what we have for you, Libra. I hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move on to Scorpio. Scorpio, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this particular week looks like for you guys. स्कॉर्पियो, हमने 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज. स्कॉर्पियो, बहुत ज्यादा बुरी नजर है, लोगों की ईवल आई, लोगों की बुरी नजर आपको इतनी ज्यादा हार्म करे ना ये हफ्ते की कोई बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है. तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत इजी जाना है. प्लीज सॉल्ट वाटर बात लीजिए ये हफ्ते. हो सके तो एटलीस्ट अपनी नजर उतारे, जो भी तरीके से आप उतारते हैं. Basic, just take some salt and rotate it over your forehead 7 times and put it in, the sink, the wash basin, right? कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चीज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे काम अटके हुए हैं. हर चीज जो आप कर रहे हो उसमें अचानक से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. सो समवेयर दिस इज अ लॉट टू डू विद ईवल आई. बहुत ज्यादा बुरी नजर है. जितना हो सके ये हफ्ते थोड़ा सा काम डाउन रहना है, बहुत लाउड होके अपनी अच्छी चीजें, अपनी हैप्पी न्यूज, सैड न्यूज, जो भी अपने बारे में किसी को ज्यादा नहीं बताना है. कीप थिंग्स टू योरसेल्फ दिस पर्टिकुलर वीक. येस, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि आप इमोशनली इतने ड्रेन फील कर रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है यार दिमाग में, मन में, शरीर में कोई शक्ति, कोई ताकत बची नहीं है कुछ करने की. सो समवेयर इट इज अ लॉट ऑफ हैवी एनर्जीज दैट वी आर सीइंग, बट पॉइंट इज कि आपको अपने एनर्जीज को क्लेंस करने में काम करना है. लाइक आई सेड, सॉल्ट वाटर बाथ्स, रिमूव योर नजर, जस्ट कीप थिंग्स टू योरसेल्फ. ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत मैजिक कर सकती हैं आपके लिए, है ना.
उसके बाद आप अपने इनर पावर को जगाइए. there's a lot inside you that can cater you in a beautiful way. So I feel आप अंदर से बहुत ज़्यादा, आपका जो विल पावर है वो बहुत अच्छा है, उसको बढ़ावा दें, उस पर फोकस करें. फोकस ऑन योर पॉजिटिव्स इज व्हाट दिस कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू. सो आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, everything that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Let's see how this week particularly looks like for you, Sagittarius. Sagittarius, लग रहा है कि परिवार में, फैमिली में ना बहुत अड़चने, प्रॉब्लम्स, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है ये हफ्ते. पैसे को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो आई जस्ट वांट यू टू ईज आउट. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि आपका अग्रेशन है ना, ये चीज इंटू 10 कर सकता है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो अग्रेशन लेवल है, मतलब जो एनर्जी है, जो हम हीटेड एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर उधर आपका गुस्सा आ जाता है ना, वो चीज और खराब हो जाती है. तो आपको एटलीस्ट इस हफ्ते अपने अग्रेशन, अपने गुस्से को काबू रखना है. फैमिली में जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको थोड़ा सा पुश करें, उसके बारे में ज्यादा ओपिनियन ना रखें. इवन दो आपको ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है, इवन दो अगर ये आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट इनटू इट. आई फील एस्केप, इससे थोड़ा सा बाहर निकलो, इससे थोड़ा सा हटो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम है ना, ये अपने प्रोफेशनल लाइफ को देने का है. आपका जो टाइम है ना, कि अपने करियर को ग्रो करने का टाइम है यार. आप इतना ज्यादा ये नेगेटिव एनर्जीज में अटके हुए हो कि यहाँ पे भी आप ब्लॉकेज देखने लग जाओगे. सो समवेयर दिस कार्ड इज आस्किंग यू टू focus and take action in terms of your professional life. You will start seeing better things, greater things in terms of your career this week. उसके बाद ये जो कार्ड आया हुआ है, एंजल मैसेज न्यू लोकेशन, ये कार्ड हमें यही बोलता है कि यार थोड़ा सा शिफ्ट, थोड़ी सी एनर्जी चेंज करने का टाइम आ गया है. नाउ दिस कुड जस्ट मीन लाइक अ वीकेंड गेट अवे और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप अपने आप को मूव कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा एक ब्रेक दे रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट कर रहे हो. दिस कुड बी career wise new opportunity, this could be moving out of the space that you are in currently. So something that will actually bring a little shift in your physical energy, right? And that is how it will help you grow a lot more, right? So yeah, this is what we had for you, Sagittarius. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We now move to Capricorn. Capricorn, we are pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Capricorn, let's see how this particular week looks like for you guys. Capricorn, you look very down. Your energies feel very confused and blank at this point. ऐसा लग रहा है यार क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So I feel Capricorn, it's just telling you slow down, ease out. But मैं ये बोलूंगी, किसी के burden में, किसी के pressure में आके कोई काम नहीं करना. You just need to look a little more inside you, because आपके पास answers हैं. You know what you want. That clarity is your power. But it's just that the situation is making you feel so stuck कि आप अपना जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो. So it's just okay to not do something, rather किसी के influence में कुछ करना. You understand? So I feel take it easy. Don't pressurize yourself so much, because you're already feeling very drained. You're already feeling very, very exhausted. But this could be relating to your personal life. But ये ऐसे बोल रहा है कि यार प्रोफेशनल लाइफ को लेके ना कुछ ग्रोथ आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ को लेके कुछ नया हो रहा है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि पैसे में बरकत आ रही है, पैसे में अबंडेंस आ रही है. सो समवेयर यू नीड टू वैल्यू दैट, यू नीड टू बी मोर अप्रिशिएटिव ऑफ दैट. यूज एफर्मेशन लाइक आई एम रेडी टू रिसीव मनी, money is flowing easily to me. Some affirmations revolving around money, so that you bring this energy more into your life at this point, right? Angel messages, inner power, don't let your inner power die, because जैसे मैंने बोला यार, आप अपने आप को जानते हो, उसमें कोई शिकवा नहीं है, उसमें कोई confusing energy नहीं है, right? But it's just that the situation is making you feel stuck. So just keep reminding of your inner power to your own self this whole week, and you'll be fine. That is what we have for you, Capricorn. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this week looks like for you, Aquarius. Aquarius, things are getting so much better. Aquarius, life is feeling like a full circle at this point. जो आपने पास्ट में छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट में मिल रहा है, और आपको बहुत खुशी है इस चीज की. इट्स अ प्लेजेंट एनर्जी, इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी. मैं ये बोलूंगी कि अभी जो टाइम है ना, बहुत अच्छा है टू प्लान योर ट्रैवल ऑल्सो. इफ
at all this year you're planning to travel, it's the time to vision it, put it on your vision board right away. आपकी energy, आपकी vibration बहुत अच्छी है, बहुत खुल रही है. So I feel it's just making you feel a lot more safe and secure. relationship में अगर कोई अड़चने थी, कोई प्रॉब्लम थी, वो भी जा रही है. रिलेशनशिप में भी आप ग्रोथ देख रहे हो, एम्पावरमेंट देख रहे हो. दिस कार्ड अगेन इज टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ. इट ऑल्सो फील्स लाइक इट इज मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. ऑल दैट यू आर वेटिंग फॉर इज कमिंग रियली रियली क्लोज टू यू. मैं ये भी बोलूंगी कि आपके काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा ये हफ्ते. पीपल आर एक्नॉलेजिंग एंड बीइंग वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन. एट द एंड एंजल्स आर टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी हैप्पीली एवर आफ्टर. You don't need to worry about that. Things are falling in place for you and you're blessed. So yeah, that is what we have for you, Aquarius. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We now move to Pisces. Pisces, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this week looks like. Pisces, the card that we have for you is only talking about healing. I feel जो भी past trauma, past negative energy, past baggage, past relationship में झगड़े, उसको ना आप heal करो, अपने आप को heal करो. Feel a little better, work on yourself a lot more this week. क्योंकि जब तक आप heal नहीं कर पाओगे ना, आप कोई और चीज में इतना focus नहीं कर पाओगे. You need to focus, you need to work really really hard towards certain things, certain energies, certain elements in your life, so that your creativity flows in. मतलब आपके दिमाग में ideas बहुत है, but आप action नहीं कर पा रहे हो, आप अटक जा रहे हो. So this is also time when you heal yourself, your ideas will expand, your creativity will expand, and eventually you will grow as an individual. Now ये दोनों चीज में हो सकता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सेल्फ ग्रोथ. तो आपका जो बेस यही है, वो अपने आप को हील करना है. ये हफ्ते आप सिर्फ अपनी हीलिंग्स पे फोकस करेंगे. एंड एंजल्स आर टेलिंग यू अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ, एक्नॉलेज योर वाइब्रेशन, द ब्यूटी दैट यू आर, एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट. Very very important for you. Take out a little more time for yourself this week and appreciate yourself. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.